Very good morning to all of you. As you all know that we all gather here for orientation day for generic BSN and post-RN BSN 2023 badge. So I would like to start this day with the name of Almighty Allah, who is our creator and creator of this universe and the Lord of Lords. So for this, I would like to invite Aman from the student of generic sixth semester for recitation of some holy verses of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उस पे लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशिमी व मक्की मदनी व उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। So now I would like to invite Rafia, the student of CMW, for the recitation of some beautiful naat. फासिलों को तकल्लुफ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे जैसे ही सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा बंदगी का करीना बदल जाएगा बंदगी का करीना बदल जाएगा सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे
खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे, खुद ही सजदों से पलकें टपक जाएंगे। नाम आका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा। नूर ही नूर सीने में बढ़ जाएगा, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। फासिलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। This is the time to formally welcome to all of you here. So it is my immense pleasure to have you all here. And on the behalf of Murshid School of Nursing and Murshid Hospital and Healthcare Center, I warmly and heartedly welcome to all of you here. And clap for them first of all. And I also congratulate all the students of post-RN BSN and generic BSN who successfully got this opportunity, and it is very appreciable because you went through the admission process on the merit basis and you avail and you got this opportunity, so you deserve a big clap. Murshid School of Nursing has been playing a great role in promoting nursing education since last 4 decades. And you should feel proud and feel honored becoming the part of Murshid School of Nursing. There are so many reasons, because Murshid has produced so many brilliant students who is serving nationally and internationally their services, and Murshid always promote their students and created opportunity for them. So this time I am very proud to be the part of Murshid School of Nursing, so that's why you should be proud, become the part of Murshid School of Nursing. So clap for Murshid School of Nursing. So as you know that you all are here for the orientation day. What does orientation day means? Orientation day means to get to know about schools, hospitals, your teacher, your curriculum, your activities, your books, the library, everything you get to know. Because this is a new thing for you. You are coming a new place to learn. So this is the orientation, because you learn new things. You learn new people, you meet new people on the day. So you will meet your teachers, you will meet your classmates, you will have a new friends. This is a new opening of your life. So I would say our program of the day comprises the day you learn the importance of nursing education, and you will come to know about the clinical importance of this theory, whatever you learn in this school, and the professional and career growth in nursing profession. And you will come to know about the rules and regulation, and you will come to know about your teacher. So first of all, I would like all of you to stand up, because this is the national anthem time. This is the time of unity to show your strength of Pakistan. So I request everyone the information about the importance of nursing profession. Clap for her. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is me, Sania Zehra. I'm working here at Murshid School of Nursing as a nursing lecturer.
and as a hostel warden. First of all, I want to tell you something about me. I have completed my generic BSc from Liaquat University of Medical and Health Sciences, and I am engaged with the Moshe School of Nursing since last 11 months. Today that I'm going to discuss in front of you is nursing is a profession. आप सब लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं. आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि जेनरिक BSN में जिनका एडमिशन हुआ है, और कुछ पोस्ट RN के स्टूडेंट्स हमारे साथ होंगे. तो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन होगा आप लोगों से कि आप लोगों ने नर्सिंग को क्यों चूज़ किया. उसने स्किल सीखी, उसको ट्रेनिंग दी गई कि कपड़े कैसे सिलाई किए जाते हैं. किसी दुकान पे वो जाके बैठा, उसने सीख लिया कि कपड़े कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं. लेकिन अगर आप बात कर रहे हो डिज़ाइनर की, फैशन डिज़ाइनर जो होता है वो प्रॉपर अपना एक करिकुलम से, अपनी एक एजुकेशन फेज से, उन सब चीज़ों से गुजर के फिर एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल करता है. अलॉन्ग विथ स्किल्स उसको एजुकेशन भी दी जाती है कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से बनाई जाएंगी, क्या होगा क्या नहीं. तो वो सारी चीज़ें उनको थ्रू प्रॉपर चैनल या उनको एजुकेशन के साथ साथ उनको ये सब चीज़ें स्किल्स सिखाई जाती हैं. तो मेन जो डिफरेंस होता है किसी भी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन के दरमियान वो यही होता है कि आपको स्किल्स के साथ साथ आपको जो उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज है वो भी दी जाती है. ठीक है, तो जहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपको दी जा रही हैं तो आपका प्रोफेशन कहलाता है. ठीक है, तो नर्सिंग क्या है, हमारा ऑक्यूपेशन है या प्रोफेशन है? क्यों प्रोफेशन है? क्योंकि यहाँ पे आप स्किल्स के साथ साथ जो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है वो भी दी जाती है. तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि है नर्सिंग एज अ प्रोफेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस के नर्सिंग क्या है. नर्सिंग जैसे कि एक हमारे कोलीग ने अभी बताया कि एक आर्ट है और साइंस है. आर्ट कैसे? क्योंकि हम यहाँ पे स्किल्स सीखते हैं. ठीक है, तो इसके हवाले से हम नर्सिंग को आर्ट बोलते हैं. और साइंस इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम थ्योरेटिकल नॉलेज को, थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए नर्सिंग जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है. इट इज़ हार्ट एंड माइंड. ठीक है, हार्ट कैसे? हार्ट के साथ आप उन लोगों की खिदमत करते हैं, उन लोगों की केयर करते हैं जिनको आपकी ज़रूरत है. और माइंड कैसे? कि आप जो भी फंडामेंटल जो भी आपके प्रोसीजर्स होते हैं, नॉलेज होती है, उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं. इसलिए नर्सिंग इज़ हार्ट एंड माइंड. नेक्स्ट प्लीज़. नेक्स्ट प्लीज़. अच्छा, हु इज़ अ नर्स? आप सब लोग अभी नर्स बनने जा रहे हैं. तो नर्स क्या होती है? ओके, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग या नर्सेज, अ नर्स इज़ अ पर्सन हु हैज़ completed a program of basic generalized nursing education and is authorized to appropriate regulatory authority to practice nursing in his or her country. नर्सिंग अगर हम बात करें नर्सिंग काउंसिल के हवाले से, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज़ के हवाले से, तो नर्स जो होती है वो एक पढ़ी लिखी और उसके साथ साथ उसको अपने मुल्क में जो भी काउंसिल होगी, नर्सिंग काउंसिल, उसकी तरफ से लाइसेंस्ड होती है कि वो अपने प्रोफेशन को कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे पाकिस्तान में हमारे पास पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है. जब आप अपना कैरियर जो अपना एजुकेशन है जेनरिक BSN या पोस्ट RN BSN कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद प्रॉपरली आपको एक अथॉरिटी दी जाएगी, एक लाइसेंस दिया जाएगा जिसके बेसिस पे आप अपनी फील्ड में प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, इन दिस इंडिविजुअल मस्ट बी prepared and licensed to practice the general scope of nursing, which include promotion of health, prevention of illness, care of physically ill, mentally ill and disabled of all ages in all settings, to carry out healthcare teachings, to actively participate in the healthcare team and to be involved in research. ये सारे रोल्स हैं जो कि नर्सेज परफॉर्म करती हैं. यानी कि सबसे पहले जो चीज़ आती है वो हेल्थ प्रमोशन आती है. आप हर स्टेप पे हेल्थ को प्रमोट कर रहे होते हैं और पेशेंट को, अपनी कम्युनिटी को, अपने आसपास रहने वाले लोगों को डिज़ीज़ से प्रिवेंट करते हैं. एज अ कोलैबोरेटर आप टीम का हिस्सा बन के काम करते हैं और जो भी टास्क आपको असाइन किए जाते हैं वो डेलीगेटली उनको कैरी आउट करते हैं. इसके अलावा जो भी आपके पास इल पेशेंट्स हैं, फिज़िकली इल हों, मेंटली इल हों या डिसेबल्ड हों,
ठीक है, विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कोई रेस, कोई इथनिसिटी, हर चीज़ से बालातर होके आप उनको केयर प्रोवाइड करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर टीचिंग्स फराहम करते हैं, जहाँ पे आपको ज़रूरत होती है किसी पेशेंट को टीचिंग देने की या उनको सिखाने की, समझाने की, तो वहाँ पे साइमल्टेनियसली नर्सेज जो हैं वो हेल्थ केयर टीचिंग्स भी प्रोवाइड कर रही होती हैं और रिसर्च में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो दिस इज़ अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट नर्सेज। सो आप सब लोग जो है वो इन फ्यूचर ये सारी क्वालिटीज़ अक्वायर करने वाले हैं और इन सब के लिए आपको ख़ासी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मॉडर्न नर्सिंग जो है उसकी हिस्ट्री क्या है। मॉडर्न नर्सिंग जो है उसकी फाउंडर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि बॉर्न हुई थी 12 मई 1820 टिल 13 अगस्त 1910, और 12 मई जो कि हम इंटरनेशनल नर्सेस डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, ये असल में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि फाउंडर है मॉडर्न नर्सिंग की, उनके बर्थडे के मुनासिबत से मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्सेस डे एवरी 12 मई, हर साल के 12 मई पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे एज अ नर्सेस डे के तौर पे मनाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा हम अगर बात करें तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ था उनका, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा था कि वो किस तरह से ह्यूमैनिटी को, मैनकाइंड को सर्व कर सकती हैं। तो ये वो लेडी थी जिन्होंने काफ़ी सारे सोशल नॉर्म्स और रूल्स को, या अपने जो फैमिली के जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी उन सब को ब्रेक करके वो आगे आई और उन्होंने ह्यूमैनिटी को सर्व किया। सिविल वॉर, मिड ऑफ द 19th सेंचुरी जब सिविल वॉर हुई थी रशिया एंड टर्की के बीच में, तो उस दौरान काफ़ी सोल्जर्स थे जो कि वुंडेड हुए और उसके बाद उनका जो मॉर्टेलिटी रेशो था वो बहुत ज़्यादा हाई था, सोल्जर्स की डेथ बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उस टाइम पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज द लेडी हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर फॉर द वुंडेड, और उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया अपनी टीम के साथ। वो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, जिसकी वजह से जो मॉर्टेलिटी रेशो था पेशेंट्स का, सोल्जर्स का, वो काफ़ी डिक्रीज़ हो गया। वो अक्सर रात के टाइम में अपने पेशेंट्स की तीमारदारी के लिए, उनकी खिदमत के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए एक लैंप लेके आती थी, जिसकी वजह से उनको लेडी विथ लैंप का ख़िताब मिला। सो शी वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, जिसको इस वक्त हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इन्हीं की मेहनत और इन्हीं की जदोजहद से फर्स्ट जो इंस्टीट्यूट था नर्सिंग का वो भी कायम हुआ उनके ही नाम से, द नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग, और नर्सिंग एजुकेशन में इनका काफ़ी रोल था। So she was Miss Florence Nightingale, which acquired get the title of Lady with Lamp. She born in 12th May 1820 till 13th August 1910. Next, please. So lastly, I'm going to discuss about the role of nurses. नर्सेज जो है वो मल्टीपल टास्क और मल्टीपल रोल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे। जब आप बेड साइड काम करते हो या जब आप किसी स्कूल में एज अ टीचर आ जाते हो, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, टास्क होते हैं जो नर्सेज को परफॉर्म करने होते हैं, जिसमें नर्सिंग सबसे पहले तो उनका जो मेन रोल है वो केयर प्रोवाइडर का है। आप जो भी पेशेंट होंगे उनको केयर प्रोवाइड करते हैं। एजुकेटर का रोल होता है। इसके अलावा जो है वो एडवोकेट, जहाँ पे पेशेंट को या आपके स्टूडेंट्स को ज़रूरत है एडवोकेसी की, वहाँ पे आप एज एडवोकेट काम करेंगे। इसके अलावा मैनेजर, आप एज अ मैनेजर अपनी टीम को, एज अ लीडर अपनी टीम को लीड कर सकते हैं, चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। कोलैबोरेटर, अपनी टीम के साथ मिलके आप लोगों ने कोलैबोरेटिवली काम करना होता है। लीडर होती है नर्स, और इसके अलावा रिसर्चर एंड काउंसलर एज वेल, जहाँ पे भी आपके पेशेंट को या आपके किसी स्टूडेंट को, अगर आप एजुकेशन साइड है तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है अपनी काउंसलिंग स्किल्स की, तो साइमल्टेनियसली नर्स जो है एक अच्छी काउंसलर भी होती है। तो दीज आर द मेन रोल्स ऑफ नर्सेज दैट दे परफॉर्म wherever they are, either at hospital bedside or either in education side or management side. So this was all about my today's presentation. And lastly, I just want to congratulate to you all because you are in Murshid Hospital, and I wish you best of luck for your further journey and best wishes for you all. Thank you so much and take care of yourself. The way she
described importance of nursing profession very beautifully. So clap for her. Nice way. So now this is the time of clinical importance of the theory. आप ज़िंदगी में कोई भी चीज़ सीखें, थ्योरी सीखें, पढ़ पढ़ के सीखें, जब तक आप उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे वो चीज़ आपके लिए बेकार है। बोथ द थिंग, ये दोनों चीज़ें पैरेलल एक दूसरे के बराबर हैं। मतलब स्किल्स के बगैर, थ्योरी के बगैर स्किल्स और स्किल्स के बगैर थ्योरी। सो ये दोनों चीज़ें पैरेलल साथ चलती हैं। जब मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग में आप आएंगे, यहाँ पर आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, तो वो सारी थ्योरी आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी हॉस्पिटल साइट पे, जब स्किल साइट पे जाएंगे। सो आई वुड से दैट वहाँ पर आप जाएंगे तो आप एक्सपीरियंसेस सीखेंगे। आपको किताबों में एक्सपीरियंस नहीं मिलेंगे, पर्सनल एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। So now for this, I would request Mr. Imtiaz Ahmed, please come on the stage and share the clinical importance of the theory. Left right. Honorable Principal Sahib, respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. My name is Imtiaz Ahmed. I have done my graduation BS Nursing from LUMS Jamshoro and done my house job या internship from Patel Hospital and done my clinical side as Dow University Hospitals. Since December 2021 till yet I am working here as a clinical instructor. From now I am also as a clinical nursing instructor, working as a nursing instructor. जैसे कि हमारी जो ग्रेजुएशन है, जो BSN 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, उसमें क्लिनिकल साइड भी है और थ्योरेटिकल साइड भी है। हम नर्सिस का सिर्फ और सिर्फ अपना थ्योरी के हवाले से रिलेटेड चीज़ें नहीं है। हम नर्सिस का असल काम है इंसान की खिदमत करना। जो लोग बीमार पड़ जाते हैं, जो लोग इल हो जाते हैं, उनकी खिदमत करना होता है। अब हम हॉस्पिटल साइड पे जो उसको किस तरह से थ्योरी से रिलेट कर सकते हैं, ऐसे कैसे रिलेट करेंगे। जब हमारा जो करिकुलम है, जो HEC ने 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम बेस किया है, करिकुलम सेलेक्ट किया है, उसमें थ्योरी भी चलती है, साथ साथ में क्लिनिकल चीज़ें चलती रहती हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में उसमें कम्प्लीटली आपके थ्योरी चीज़ें होती हैं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद फिर आपका क्लिनिकल भी चलता है और साथ में आपकी थ्योरेटिकल चीज़ें भी चलती हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं कि हम कोई भी ऐसा इंसिडेंट देखते हैं ना, तो हमें वो फ़ौरन याद हो जाता है। कोई भी इंसिडेंट, कोई रोड हादसा होता है या फिर कोई ऐसा बात सुनी जाती है, तो वो हमें फ़ौरन याद हो जाती है और हमारे जहन में अच्छी तरह से चलती रहती है। तो हमारे जो करिकुलम है उसके अंदर भी, जो नर्सिंग का करिकुलम है उसके अंदर भी पहले थ्योरेटिकल चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन उस थ्योरी को ब्रेन में एक सिनेरियो टाइप एक याद करने के लिए साथ में क्लिनिकल वर्क दिया जाता है। स्टूडेंट्स के हवाले से स्टूडेंट को क्लिनिकल वर्क कराया जाता है ताकि जो स्टडी है वो कम्प्लीटली याद हो जाए। अब इसमें क्लिनिकल कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल क्या हॉस्पिटल साइड है? यहाँ पे हॉस्पिटल साइड भी क्लिनिक होता है और कम्युनिटी हेल्थ विजिट्स भी कराए जाते हैं, जो कि CH जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक सब्जेक्ट अलहदा, उसमें कम्युनिटी के अंदर भी विजिट कराए जाते हैं। और ये चीज़ें किस तरह से रिलेट कर रही हैं, जैसे कि हम थ्योरेटिकली जो डिजीज़ पढ़ते हैं, अब हम उसको प्रैक्टिकली किस तरह से मेमोराइज की जाए। हमें पता कैसे चले कि बुखार, सर दर्द, सर्जरीज, ड्रेसिंग वगैरह, इन चीज़ों सबका पता हमें चलेगा। जिस थ्योरेटिकली तो हम पढ़ लेते हैं क्लासेस के अंदर, प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें जाके हम हॉस्पिटल में उन चीज़ों को देखेंगे, वहाँ पे जो चीज़ें कुछ प्रैक्टिकल वर्क होते हैं वो हमसे कराए जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। So now this is the time for professional and career growth in nursing profession. As you know that, जैसे कि आपको मालूम है कि करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ हर प्रोफेशन में होती है। भले आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, हमेशा आप अगर आप चाहें अपनी एजुकेशन और अपनी प्रैक्टिस और अपने एक्सपीरियंस को आप ग्रो करके अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप्ड कर सकते हैं। एज इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, I used to be, before 12 years back, I used to be the primary teacher, then I become the school teacher, secondary, then college, then I taught in university, because I grew my experiences
As well as side by side, I also grew my education, because education is the thing which can change the world, as Nelson Mandela said. So now I would like to invite Mr. Riaz Gul, who is the assistant professor in Murshid School of Nursing. Please come on the stage and share some knowledge about the professional and career growth in the nursing profession. Clap for him. अपनी कम्पिटेंसीज देखनी है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं किस जगह पे अच्छा हूँ। तो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना स्टार्ट कर दें, अगर आपको पता है कि भाई मैं प्रेजेंटेशन अच्छी दे सकता हूँ, मैं जो है ना मेरी इंग्लिश अच्छी है, तो उसी पे ज़्यादा अगर आप फोकस करेंगे, ठीक है, उसी हिसाब से चलेंगे तो आप क्या जीत जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कछुए ने क्या किया कि देखा कि भाई मेरी कॉम्पिटेंसी क्या है, मैं तो तैर सकता हूँ पानी में, पानी से गुजर सकता हूँ, लेकिन खरगोश नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो खरगोश से मैं जीत जाऊँगा। तो उन्होंने अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को देखा और अपने रूल्स बनाए, असूल बनाए और जीत गया, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन स्टोरी अभी तक भी चल रही है, बहुत तो नहीं कर दिया स्टोरी ने। अच्छा, अभी ना कछुआ और खरगोश दोस्त बन चुके थे, क्योंकि 2-3 बार लड़ लिए थे उन्होंने रेस, ठीक है। तो अभी उन्होंने दोस्ती बना ली, क्या चलो ठीक है, एक बार तुम जीते, एक बार मैं जीता, अगली बार आप जीत गए, ठीक है ना। अभी यार कुछ ऐसा करते हैं कि ना जो कि मतलब यूनिक हो, अलग हो सबसे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि नेक्स्ट, कछुए ने खरगोश ने कहा यार मैं तेज़ दौड़ता हूँ, मैं क्या करूँगा, ठीक है, आप मेरे बैग पे बैठ जाना और नदी के पास चले जाएंगे हम, ठीक है ना, वहाँ तक जल्दी पहुँच जाएंगे हम लोग, साथ ही पहुँचेंगे। और फिर क्या करेंगे, जब नदी पार करने का टाइम आएगा तो आपकी बैग पे मैं बैठ जाऊँगा, ठीक है ना। ऐसे करके हम क्या करेंगे, नदी पार कर लेंगे। और नेक्स्ट में क्या होगा कि फिर आप मेरे ऊपर बैठ जाना और हम गोल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस स्टोरी का क्या मोरल बना, टीम वर्क। किसने कहा, क्लैपिंग। अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं, सपोज एक की इंग्लिश अच्छी है, दूसरे की प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे हैं। सर रियाज ने हमें गुजरा हुआ ज़माने की याद दिला दी सर सैयद अहमद ख़ान का, कि वो भी इसी तरह की एक कहानी थी। अच्छा, सो नाउ जैसे कि सर रियाज ने बात की स्टूडेंट की स्किल्स पे, प्रोफेशनल ग्रोथ पे, सो मुझे एक बात, मैं अंदर बैठा था, मुझे एक बात याद आई कि मैंने चाहा मैं आपको कन्वे करूं। मैं अक्सर रिसर्च वगैरह पढ़ता रहता हूं नेट के ऊपर, तो मैंने एक दिन रिसर्च की तो मैंने ये देखा कि स्टूडेंट्स का जो कामयाबी का रेशो था, पहले मुझे लगा कि शायद वो स्टूडेंट होंगे जो इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, जिनको अल्लाह ताला ने एक जहानत दी है, ज़हीन स्टूडेंट। दूसरा मैंने देखा कि शायद वो स्टूडेंट होंगे जो बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क स्टूडेंट। लेकिन ये दोनों रेशो बहुत नीचे थे, ना तो मेहनत वाले ऊपर थे, ना तो जहानत वाले नीचे थे। उसकी जब मैंने वजह तलाश की, वो कौन से ऐसे स्किल्स थे जो स्टूडेंट्स को जो है वो मतलब ज़हीन होने के बाद भी, मेहनती होने के बाद भी, हार्ड वर्क होने के बाद भी वो पीछे थे। द रीज़न इज़ दैट देयर आर सो मैनी स्किल्स जिसमें हम काम नहीं करते, वे वी हैव टू वर्क। आपकी ज़िंदगी में बैड एक्सपीरियंस भी आएंगे। अब एक बच्चा बहुत ज़हीन है लेकिन मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो स्ट्रेस को डील कर सके। इफ़ यू कैन नॉट डील योर स्ट्रेस, क्योंकि बैड एक्सपीरियंस तो लाइफ में आने हैं। कोई बंदा ही नहीं कह सकता मेरी ज़िंदगी में बैड एक्सपीरियंस नहीं आ सकता। बैड एक्सपीरियंस के बाद जो बच्चा मूव ऑन करना सीखता है, जो उसको मूव ऑन कर लेता है, उसका रेशो थोड़ा ज़्यादा हाई था। उसमें और भी स्किल्स थी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, मेहनती हैं लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स, वो मेहनती बच्चे जिनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। बिकॉज यू हैव टू एक्सप्रेस, नाउ द एरा हैज़ बीन चेंज, पीपल इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू, यू हैव टू मेक देम एक्सेप्ट यू। आपको बनाना है, आपको बताना है कि आप हैं समथिंग, यू आर समथिंग, यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ। आप इस नर्सिंग प्रोफेशन में आपको जवाबदेह होना है, यू विल बी द अकाउंट होल्डर, यू विल हैव टू आंसर। सो हाउ वुड यू एक्सप्रेस, आप एक्सप्रेसिव कैसे होंगे जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो लोग भी बहुत कामयाब होते हैं, ज़हीन नहीं होते
मेहनती के साथ वो प्रॉब्लम जब आती है सॉल्विंग की तरफ, सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो इसके हम पढ़ाई के अलावा भी हमें बहुत सारे स्किल्स पे काम करना पड़ता है कामयाब होने के लिए। अगर आप मुझसे पूछते हैं, जैसे हर बंदे का अपना एक ओपिनियन होता है, आई हैव सीन दोज पीपल हु आर द सक्सेसफुल जिन्होंने ज़िंदगी में टफ़ टाइम गुजारा होता है। और टफ़ टाइम, ये एजुकेशन क्या है, ये आपका टफ़ टाइम है, क्योंकि हर मुश्किल की बाद राहत होती है। तो यहाँ पे अब टफ़ टाइम है। हम जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, हमें लगता था हम क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत मुश्किल वक्त में थे, लेकिन उसके बाद रिलैक्स्ड हुए। तो हर मुश्किल के बाद राहत आती। तो ये टफ़ टाइम जो होता है ना, तो आप इस टफ़ टाइम के अंदर अगर जो बंदा परेशान हो जाए तो वो कामयाब नहीं होती। टफ़ टाइम के अंदर अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता है, वेदर वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, स्ट्रेस डीलिंग हो, बैड एक्सपीरियंस पे ओवरकम करके मूव ऑन करना हो। सो दोज स्टूडेंट्स आर द मोर सक्सेसफुल in terms of ratio in the world. So I hope you understand whatever I'm saying. So now this is the time to call Miss Samia Jabbar. Please come on the stage, who is the vice principal of the school, and I would request her to please come on the stage and share rules and regulation for the student. She is the vice principal. अब मुर्शिद सोनम में आने के बाद वैसे तो तमाम टीचर ने बहुत अच्छा आप लोगों को एक्सप्लेन किया, बताया नर्सेस के बारे में, और जो है मोटिवेट बहुत अच्छा किया आप लोगों को सर रियाज गुल ने। और इन तमाम चीज़ों के बाद अब हम बात करते हैं रूल्स रेगुलेशन के बारे में। अब आप मुर्शिद के अंदर आ गए, आपका एडमिशन हो गया, अब 4 साल और 2 साल आप लोगों ने कैसे गुजारने हैं। देखा क्या होगा कि कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी अदारा जब बनता है तो उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं, उसकी कामयाबी के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। अगर हम इसकी मिसाल लें घर के तौर पर, घर के अंदर भी एक असूल होता है, एक रूल्स होता है, उसके हिसाब से एक फैमिली चल रही होती है, वो कामयाब फैमिली। घर में लेट नहीं आना, इतने बजे आपने स्कूल जाना है, वापस आना है, हर चीज़ का जवाबदार होना पड़ता है इंसान को। जब ये तमाम चीज़ें होती हैं तो उसके बाद वो फैमिली, वो घर कामयाब होता है। इसी तरह कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी अदारा है, उसको भी कामयाब होने के लिए और स्टूडेंट को कामयाब करने के लिए अपने रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं। तो वैसे तो आप लोगों का सबके साथ मेरा सामना होता रहा है एडमिशन के दरमियान, मगर इसके बाद जो सामना होगा वो सही वाला होगा। सही है स्टूडेंट? तो रूल्स रेगुलेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग पंक्चुअलिटी, पंक्चुअल भी रहना है आपने, रेगुलर भी रहना है। अगर पंक्चुअल रेगुलर की अगर मैं बात करूं तो आपकी थ्योरी यानी क्लासेस के अंदर जब आप क्लास के लिए आएंगे, क्लासेस के अंदर आपकी 85% अटेंडेंस होना मस्ट है। आपके बोर्ड और आपके पीएनसी की तरफ से जो है आपके क्लिनिकल की जो है वह 100% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, और जो आपकी क्लासेस है थ्योरी की अटेंडेंस वो 85% होना मस्ट है। दूसरी जो है अपने स्कूल के अंदर अपने टाइम पे आना है, ना टाइम से पहले ना टाइम के बाद। टाइम से पहले का मतलब आपकी टाइमिंग है 8:30 बजे, 8 से 8:30 बजे तक आप लोग स्कूल ओपन हो जाता है, आपने आना है। 9 बजे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उससे पहले कोई स्टूडेंट नहीं आएगा, ना 7:30 बजे ना 9 बजे के बाद। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर वो लेट आता है तो मंथ में 3 दफ़ा लेट आपको अलाउ होगा। चौथी दफ़ा लेट आने पर आपको कोई भी पनिश, जो आपकी क्लास कोऑर्डिनेटर है, टीचर है, या मैं खुद वहाँ पर होंगी, जो पनिश होगी आप लोगों को सब हमें बेहतर लगेगी हम देंगे, या वापस आपको घर भेज दिया जाएगा, या क्लास के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। वही कि क्लास के लिए आपको टाइम पे आना होगा, ठीक है। 8:30 बजे आपकी टाइमिंग है, 9 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद है स्टूडेंट जो है स्कूल के अंदर साफ़ सुथरे यूनिफॉर्म तो आप लोग का नहीं है, वो क्लिनिकल साइड होगा। ड्रेस के अंदर आना है, सिविल ड्रेस के अंदर साफ़ सुथरा आप लोग का ड्रेस होना चाहिए। ब्लैक शूज़ होने चाहिए, फीमेल के लिए भी ब्लैक शूज़ और मेल के लिए भी ब्लैक शूज़। साफ़ सुथरे ब्लैक शूज़ होने चाहिए और सिविल ड्रेस के अंदर होना चाहिए। सिविल ड्रेस वो होना चाहिए जो इथिकल्स के अंदर हो, जो आपका जो कल्चर है और इन्वायरमेंट है उस हिसाब से होना चाहिए। लड़कों के गर्बान ओपन नहीं होने चाहिए, बटन बंद होने चाहिए। फीमेल चूड़ियाँ, ज्वेलरीज, हाथों पे मेहंदी, ये अलाउ नहीं होगा। रिस्पेक्ट मस्ट है, चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट है, क्लास टीचर है, फैकल्टी है, आपका कॉलीग है,
या कोई दूसरा स्टूडेंट है, सबकी रिस्पेक्ट मस्ट है। आज आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे, कल आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। फीस पे अगर मैं बात करूं, जैसा कि अभी आप लोगों ने एडमिशन फ़ीस दी थी, एडमिशन फ़ीस के साथ आपने सेमेस्टर फ़ीस भी पे की थी। इसी तरह जब आपका कल नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा, उससे पहले आपने फ़ीस पे करनी है। मिसाल के तौर पर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हैं, उसके आपके बोर्ड की फ़ीस आ गई, एडमिट कार्ड आ गया। एडमिट कार्ड के साथ आपने नेक्स्ट जो सेमेस्टर स्टार्ट होगा उसकी फ़ीस पहले पे करनी होगी। अगर आप फ़ीस पहले पे नहीं करते तो उसमें कुछ पनिश की सूरत में कुछ चार्जेस बढ़ा दिए जाते हैं, तो एडमिट कार्ड भी नहीं मिलता। इस वजह से परेशानी से बचने के लिए पहले से अपनी फ़ीस का अरेंजमेंट करें। अच्छा, अब जो है कुछ एक्टिविटीज़, हर वक्त ये नहीं है कि आपको स्टडी पे फोकस किया जाए, आपको इसके साथ फर्दर एक्टिविटीज़ होती है, उसमें भी इन्वॉल्व किया जाता है। टीचर क्लास के अंदर आपका टीचर है, अगर कोई एक्टिविटी है तो उसके साथ फ्रेंडली होकर भी आपके साथ काम कर रहा होता है। जिस तरह कि अभी कुछ दिन पहले हमारा कल्चर डे किया गया था सेलिब्रेट, उसके अंदर तमाम स्टूडेंट, तमाम टीचर एक फ्रेंडली होकर काम कर रहे थे। इसी तरह अगर आपके कैरिकुलम के हिसाब से कुछ भी एक्टिविटी होती है तो वो भी आप उसमें आप अपने टीचर्स के साथ मिलकर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी को कोई इंसिडेंस हो जाता है क्लास के अंदर, दूसरा स्टूडेंट किसी से बदतमीज़ी कर रहा है किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ, या गाली गलौज कर रहा है, या फिर कुछ और मिसबिहेव किया, तो ऐसी सूरत में दूसरे स्टूडेंट को चाहिए कि फ़ौरन से आकर टीचर को पहले बताए। टीचर नहीं है, कोऑर्डिनेटर है आपका, कोऑर्डिनेटर को बताए। कोऑर्डिनेटर नहीं है, फिर मेरे पास आ सकते हैं। अगर मैं भी नहीं हूँ अवेलेबल या आपकी बात नहीं सुन रही तो फिर हमारे प्रिंसिपल है सर आमिर शरीफ, आप उनके पास आ सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ने पहले से कोई एक्शन ले लिया, अगर किसी ने बदतमीज़ी की, उसने भी उल्टा बदतमीज़ी की, तो वो बराबरी होगी। फिर अगर कोई हमारे पास आता है, दोनों को पनिश होती है। अगर वो स्टूडेंट उसका खामोश रहा और उसने आके कंप्लेन हमें कर दी, तो फिर पनिश उस स्टूडेंट को दी जाएगी जिसने मिसबिहेव किया है। अच्छा, कुछ मेजर और माइनर ऑफेंसेस है हमारे, ठीक है, कुछ ऐसे काम या जुर्म या गुनाह जो किए जाएं जिस पर पनिश दी जाती है। उसके अंदर अगर हम देखें माइनर के अंदर, माइनर में अगर कुछ इस तरह का इशू हो जाता है तो उसमें वार्निंग लेटर हम पहले इशू करते हैं, करेंगे भी। पीछे पुराने स्टूडेंट बैठ के मुस्करा रहे हैं, मिल जाएगा अनकरीब आपको भी। और ऐसे हमने बहुत से दिए हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो टर्मिनेट किए हैं हम लोगों ने। वो डिप्लोमा प्रोग्राम में भी है, डिग्री में भी है, सर्टिफिकेट में भी हैं। अच्छा, कोई भी इस तरह का इशू हो जाता है, पहले हम एक वार्निंग लेटर देंगे। अगर एक वार्निंग लेटर के बाद दोबारा से स्टूडेंट की कंप्लेन आती है, दूसरा वार्निंग लेटर दिया जाएगा। अगर तीसरी दफ़ा कुछ उसने मिसबिहेव किया या कुछ और एक्टिविटी ऐसी की तो तीसरा लेटर दिया जाएगा। तीसरे लेटर के बाद उसको फिर मेजर जो है ऑफेंस में कर दिया जाएगा। जो उसकी पनिश होगी वही मिलेगी। उसकी पनिश क्या है वो भी हम आगे बताते हैं। शोकास नोट्स उसको दिया जाएगा। उसके बाद फिर भी नहीं सुधरा तो सेमेस्टर ब्रेक भी हम कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे उसको प्रोग्राम से, या उसका एनरोलमेंट हम कैंसिल करवा देंगे। माइनर ऑफेंसेस में अगर मैं बात करूं, पंक्चुअल रहना है, ज़्यादा छुट्टी नहीं करनी, सही है। स्किप क्लासेस स्किप नहीं करनी। बाज़ स्टूडेंट ऐसा होता है कि सुबह की क्लास ली, 11 बजे टी ब्रेक हुआ, टी ब्रेक के बाद चले गए, बैग लिया, वापस ही नहीं आए। या ऐसा हुआ कि सुबह की क्लास नहीं ली, सेकंड क्लास में आ गए। सुबह की क्लास में कोई प्रेजेंटेशन थी या कोई असाइनमेंट था या कोई टेस्ट था, देखा ये टीचर जो है वो ज़्यादा जो है सख्त नहीं है, तो उससे हम फ़ायदा उठाएं और क्लास में लाएं। अच्छा, लेट सबमिशन ऑफ असाइनमेंट। जब असाइनमेंट की बात आती है उसमें पहले बेटा ये आप लोग समझ लो अच्छे तरीके से, जो भी सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में से 60 जो हैं, 60 नंबर वो आपके इंस्टीट्यूट के पास होते हैं, आपके टीचर के पास होते हैं। उसमें 40 जो है 40 मार्क्स वो आपके बोर्ड के पास होते हैं। 40 में से जो है वो आपके मिड टर्म के तौर पर जो आपका जो कैरिकुलम है उस हिसाब से हम डिवाइड करते हैं। उसके अटेंडेंस के मार्क्स भी होते हैं, प्रेजेंटेशन के होते हैं, असाइनमेंट के होते हैं, और फर्दर कोई और एक्टिविटी है तो उसके मार्क्स होते हैं। इसके अंदर जो टीचर आपको असाइनमेंट देगा तो टाइम पे आप देना है। बाद में क्या होता है, स्टूडेंट आ रहे होते हैं, कंप्लेन कर रहे हैं टीचर की। किसकी कंप्लेन कर रहे हैं? टीचर की कंप्लेन कर रहे हैं कि टीचर ने हमें मार्क्स कम दिए। खुद नहीं देखेंगे हमने क्या किया है। बेटा डिग्री प्रोग्राम में आ गए हो, डिग्री प्रोग्राम करने जा रहे हो, डिग्री प्रोग्राम के आप स्टूडेंट हो, उस लेवल से आपने रहना है। तो जो भी प्रेजेंटेशन होगी, असाइनमेंट होगी, वो आपने टाइम पे करना है। टाइम पे अगर आप दोगे तो उसके मार्क्स पूरे मिलेंगे, वरना नंबर कम आएंगे।
क्लिनिकल अच्छा, मेजर की अगर हम बात करें, अगर किसी टीचर के साथ, स्टूडेंट के साथ मिसबिहेव करना, बदतमीज़ी करना, हाथ उठाना। दूसरा है चोरी, अपने चीज़ की खुद हिफाजत करनी है। अगर कोई इस तरह का स्टूडेंट मिल गया कि अक्सर ये आ जाता है, मोबाइल मेरा चोरी हो गया, मेरा असाइनमेंट चोरी हो गया, मेरे बैग से किसी ने कुछ निकाल दिया, इंस्टीट्यूट इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं है। हाँ, अगर स्टूडेंट को इस तरह मिल जाता है कि इसने किया, तो उसकी पनिश होगी, जो कि पहले मैंने आप लोगों को बता दी है कि मेजर की क्या पनिश होती है। चीटिंग। अच्छा, दूसरा गुटखा, पान, छालिया, नस्वार बिल्कुल मना है। पीछे कुछ स्टूडेंट मुस्कुरा रहे हैं, तो बेटा ये मना है। इस चीज़ को देखने के लिए सर इमरान रियाज हर वक्त यहाँ पर होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब किस टाइम आपकी तस्वीर बनी और कब आपकी पनिश हो गई। तो गुटखा, पान, छालिया वैसे भी देखा जाए नुकसानदेह चीज़ है। हम नर्सिस हैं और पेशेंट की केयर करते हैं, हम पेशेंट को जो है बता रहे होते हैं इन चीज़ों से। तो अगर हम लोग खुद ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हम दूसरों को क्या नसीहत करेंगे, क्या काउंसलिंग करेंगे, क्या केयर देंगे। अच्छा, इसके अलावा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, यानी पॉलिटिकल्स यहाँ पर नहीं चलेगा। कि मैं जो अक्सर जो है देखा गया है यूनिवर्सिटियों के अंदर होता है, कॉलेज के अंदर होता है, मगर हम लोग इस चीज़ को अलाउ नहीं करते। जमात इस्लामी है, MQM का है, PP का है, इमरान खान का है। यहाँ पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए आप लोग आएंगे, अपने स्टडी पर तवज्जो देनी है। अगर कोई इस तरह का स्टूडेंट है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अनएथिकल एटीट्यूड यानी मिसबिहेव से बात करना, टीचर का कहना ना मानना, अपने स्टूडेंट के साथ बदतमीज़ी से बात करना। सुसाइड और डैमेज स्कूल प्रॉपर्टी, ये बहुत ही गलत काम है। अगर कोई इस तरह के स्कूल की कोई देख नहीं रहा, चेयर तोड़ दी, शीशा तोड़ दिया, या कोई और दरवाज़ा तोड़ दिया, या कोई मुझे देख नहीं रहा, मार्कल उठा के फेंक दिया, तोड़ दिया, चोरी कर लिया, या क्लास में कोई नहीं है तो LCD वगैरह तोड़ दी, तो बेटा आप लोग को पता भी नहीं होगा। आप लोग समझ रहे हैं हमें नहीं पता कौन देख रहा है, मगर इस तरह का कुछ हो जाता है, इसके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है, आपको पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और आपसे उस चीज़ की डबल कीमत वसूल की जाएगी। रिपीटेड फेलियर यानी ऐसे स्टूडेंट जो बार बार फेल हो रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में एक दफ़ा फेल हो गए, दोबारा उनको चांस मिला, फिर फेल हो रहे हैं, फिर फेल हो रहे हैं, तो ईयर बैक हो जाते हैं। ईयर बैक होने के बाद फिर उनको एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसी वजह से अपनी स्टडी पर फोकस रहना है, अपनी स्टडी पर तवज्जो देनी है, जैसा कि अभी सर रियाज़गुल ने आप लोगों को बहुत अच्छे से तरीके से मोटिवेट किया इस बात पे। और अभी जो टाइम है वो बेस्ट टाइम है, इसके बाद का टाइम फिर नहीं होता। बेस्ट विशेज़ आप सबके लिए और वेलकम इन मुर्शिद सोनम। थैंक यू। जैसा कि अभी समझिया आप लोगों को आगाह कर रही थी, पहले से बता रही थी कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए बातें नहीं हैं, ये आपको दिमाग कीप इन माइंड एंड फॉलो दिस रूल्स एज वेल। और एक बात, जैसे कि हमारे यहाँ जो ग्रेडिंग सिस्टम है, इंटरनल इवेलुएशन में ये चीज़ें काम आते हैं, इसके मार्क्स होते हैं। जैसे एक बच्चा अगर वो पंक्चुअल नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो हमारे पास अटेंडेंस के मार्क्स है। ये जो स्कूल और कॉलेज स्टडी सिस्टम होता है, अब ये यूनिवर्सिटी लेवल, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में होगा, वहाँ में अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं। अटेंडेंस, क्लास परफॉर्मेंस, तो अपने बिहेवियर को भी आपको सही रखना है। मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट से एक बात शेयर करता हूँ कि जो मुझे ऐसा लगता है कि टीचर हमेशा अपने उन स्टूडेंट्स को ज़रूर याद रखता है जो बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं टीचर्स को। भले वो पढ़ने में इतना अच्छा ना हो, लेकिन उसकी कुछ ऐसी स्किल्स, कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो टीचर को हमेशा याद रहती हैं कि हाँ यार वो बच्चा था, वो बहुत रिस्पेक्ट करता था, पढ़ने की कोशिश करता था, इम्प्रूव करने की कोशिश करता था। इंसान कोशिश ही कर सकता है, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ द टाइम टू इनवाइट द QEC। जैसे आपको मालूम है मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग में बहुत सारे डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी है, साइंस लैब है, इस तरह से हमारे पास QEC है, QC क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल। इनका जो काम होता है ये स्टैंडर्ड, ये रिव्यू करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ एजुकेशन। सो आई वुड रिक्वेस्ट द हेड ऑफ QEC, सर इमरान रियाज, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज एंड शेयर योर व्यूज़। क्लैप फॉर हिम।
मेरा नाम इमरान रियाज है। मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में एज आ डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी एनहेंसमेंट सेल को लीड कर रहा होता हूँ। जैसा कि आप सब अवेयर हैं कि हमारा मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग जो आपका डिग्री प्रोग्राम है ये एफिलेटेड विद डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से। तो डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के जो भी प्रोसीजर्स जो भी गाइडलाइंस हैं वो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं और आपको इन पे आपको भी इम्प्लीमेंट करना होगा और इंशाल्लाह हम आप लोगों से इस पे इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। तो लेट्स सी व्हाट दे से कि डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस क्या कह रहे हैं आपके लिए। एज फर्स्ट दे से टू कोऑर्डिनेट विद द क्वालिटी एनहेंसमेंट सेल ऑफ डॉ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस regarding the achievement regarding the department and implementation of QAA HEC initiative as mandated by QEC। यानी यहाँ पे डॉ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस ने आपको इंडोर्स कर दिया है कि आपका जो डिग्री प्रोग्राम है ये डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से एफिलेटेड है। देयर नो डाउट वो जो भी उनके इम्प्लीमेंटेशंस हैं जो भी उनके प्रोसीजर्स हैं पॉलिसीज़ हैं हमें ये फॉलो करने होते हैं। Second, to ensure that relevant training and education of quality assurance mechanism is imparted to all relevant person of the program course offered। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो रेवलेंट आपकी ट्रेनिंग एजुकेशन के हवाले से जो भी यहाँ पे पॉलिसीज़ हैं प्रोसीजर्स हैं उनको हमने इम्प्लीमेंट करवाना है और उसकी ट्रेनिंग को मॉनिटर हम करेंगे कि आपकी ट्रेनिंग एजुकेशनल के लिहाज से आपकी ट्रेनिंग कैसी हो रही है, आपके एकेडमिक्स कैसे चल रहे हैं, तो वी इंश्योर एंड मॉनिटर इट। थर्ड दे से टू इंश्योर दैट द एक्टिविटी ऑफ द QEC एज established implemented maintain and continuously up to dated at the institutional level। मतलब जो भी आपके इस्टेब्लिश की गई हैं क्वालिटी एनहेंसमेंट सेल जो यहाँ पे मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग में इस्टेब्लिश किया है तो उसमें जो इस्टेब्लिश करने की क्या वजह है, क्यों उसको इस्टेब्लिश किया गया है, ताकि आपका जो रिकॉर्ड है वो मॉनिटर हो रहा है और वो उसे हम इंस्टीट्यूशन लेवल पर डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के इंस्टीट्यूशन तक हम उसको लेवल को उसे मॉनिटर करेंगे और वहाँ पे जो है उनके गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। फोर्थ है टू इनिशिएट द इम्प्लीमेंट द इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म एट प्रोग्राम लेवल सच एज सेल्फ असेसमेंट रिपोर्टिंग SAR process and self assessment feedbacks forms to communicate with the QEC on the implementation of the self assessment feedback mechanism forms as per HSC criteria for you all। ओके यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो आपका लाइक डिग्री प्रोग्राम में जो आपके सेमेस्टर्स होंगे तो जैसा कि फ्रॉम टुडे नाउ ऑनवर्ड यू हैव लाइक 4 months फॉर योर सेमेस्टर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। जो आपका पहला सेमेस्टर होगा तो उस सेमेस्टर में जो आपको 4 months में तैयारी करनी है, जो हमारे कॉम्पिटेंट फैकल्टीज़ हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, हमारी वाइस प्रिंसिपल साहिबा हैं, दे शुड लीड यू। जो भी क्लास के असाइनमेंट्स हैं, आपकी थ्योरीज हैं, आपकी प्रेजेंटेशंस हैं, वो सारा आपने इन 4 months में कवर करना है। आफ्टर दैट उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में ओनली मी यू एंड दैट योर एग्ज़ाम पेपर। वहाँ पर यू डोंट हैव एनी हेल्पलाइन, यू डोंट हैव मोबाइल फ़ोन्स, यू डोंट हैव कैलकुलेटर्स, इवन यू डोंट हैव योर फैकल्टीज़ प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल। तो वहाँ पर हम होंगे, आप होंगे और वो आपका एग्ज़ाम पेपर होगा। तो इसलिए जो ये 3 से 4 months का ऑलमोस्ट जो आपका पीरियड होगा तो काइंडली आप अपने टीचर से, अपने फैकल्टीज़ से, अपने प्रिंसिपल साहब से, वाइस प्रिंसिपल साहिबा से जो भी आपको गेन करना है एकेडमिक के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, वो आप गेन कर सकते हैं। वी हैव हमारे पास प्रोफेसर्स भी हैं, कॉम्पिटेंट फैकल्टीज़ हैं, मास्टर डिग्री होल्डर्स, टीचर्स हैं जो आपको आपकी तालीम तरबियत का ख्याल रख रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम आपसे ये भी लेंगे कि आफ्टर दैट जब आप एग्ज़ाम 4 months के बाद हमारे पास एग्ज़ाम के लिए आएंगे यहाँ पे, तो हम आपसे 2 तरह के फ़ीडबैक लेंगे। एक आपसे हम फ़ीडबैक ये लेंगे कि आपके टीचर ने, जो आपकी फैकल्टी है, उसने 4 महीने में आपको कैसा पढ़ाया, उसके अपने टीचर के बारे में आप हमें फ़ीडबैक देंगे। सेकंड, आप अपने कोर्स के बारे में भी हमें फ़ीडबैक देंगे कि जो आया कि आपको हमने 4 महीने में कोर्स पढ़ाया आपके फैकल्टी ने, तो उसका फ़ीडबैक आपका कैसा रहा।
उसमें पॉइंट्स लिखे होंगे, वो आप गाइडलाइन हम आपको दे देंगे, तो उसे आपने फीडबैक फॉर्म फिल करके ऑनलाइन हमें देना होगा, जो डायरेक्टली डॉ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस में चला जाएगा। फिर वहाँ से उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो फिर बाद में हमें मिलेंगे। 5th में है टू coordinate and facilitate effectively for all internal external quality एश्योरेंस मैकेनिज़्म। जो क्वालिटी एश्योरेंस का मैकेनिज़्म इंटरनल है और जो एक्सटर्नल है, इंटरनल मतलब यहाँ पे यानी स्कूल ऑफ मुर्शिद ऑफ नर्सिंग में जो आप कर रहे हैं, जो आपके एकेडमिक्स है, जो आपकी पढ़ाई है, उसे हमें मॉनिटर करना होता है। सेकंड जो एक्सटर्नल है यानी डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में जो चीज़ें हो रही होती हैं उनको भी हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। लास्ट में टू कोऑपरेट विद द डिग्री अवॉर्डिंग एंड अटेस्टेशंस। लास्ट में जो आपकी जब डिग्री कंप्लीट होगी, इंशाल्लाह आपका सेमेस्टर, आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, कोर्स कंप्लीट होगा, तो डिग्री के हवाले से जो भी इसको टेस्ट करवाना, उसको रिगार्डिंग वहाँ से जो भी प्रोसेस होता है वो सारा भी इंशाल्लाह हम लोग कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक हमारी कोऑर्डिनेशन आपके साथ होती है एज अ क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल, यानी QEC आप इसको नाम दे सकते हैं। हम अवेलेबल होते हैं, हमारी टीम यहाँ पर होती है जो आप लोगों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये वो क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल नहीं है कि आप समझें कि ये कोई रेंजर या आर्मी का कोई सेल है। दिस इज़ योर एग्जामिनेशन सेल। ये आपका एग्जामिनेशन का, आपकी जो क्वालिटी का मेयार है, आपके एग्ज़ाम का, आपकी पढ़ाई का, ये उसका सेल है जिसे हम लोग लीड कर रहे होते हैं। और इंशाल्लाह आपके पास 4 मंथ्स हैं, आप 4 महीने में अपना सेमेस्टर, अपनी मेहनत जो है वर्स्ट सब है आपके पास इंटरनेट है, आपके पास क्वालिफाइड टीचर्स यहाँ बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, वाइस प्रिंसिपल साहब हैं। तो मैं होप करूँगा, क्योंकि नया साल है, आप सबको नया साल मुबारक। आप नया एम लेके आए हैं, नई होप लेके आए हैं। फर्दर आपकी ज़ाहिर है कुछ ख्वाहिशात हैं, आप बड़े होपफुल यहाँ पे आए हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि आपकी ये फुलफ़िल हो, आपकी जो भी होप है, जो भी एम आप लेके आए हैं। तो नए साल के साथ आपको जो नया जर्नी शुरू है, नया सफ़र शुरू है यहाँ मुर्शिद हॉस्पिटल में और मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग और मिडवाइफरी में, इंशाल्लाह ये आप फुलफ़िल करके जाएंगे यहाँ से। थैंक यू। Today you learned a lot about the school, and after this program you will have a visit. आपका एक विज़िट होगा हॉस्पिटल का और स्कूल का भी, जिसमें आप चीज़ों को जो है समझेंगे और देखेंगे। So now आज आप सीख चुके हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग के बारे में, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस के बारे में, करियर ग्रोथ के बारे में। Now the most important presentation is left to be seen now. So now I would like to invite the most important personality of the day, who is the well-educated and well-experienced, our Honorable Principal, Mr. Amir Sharif. Please clap for him. इन प्रोग्राम्स में हम ऑलरेडी स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। जेनेरिक के फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाई है, तो हमें जो डोनर मिला हुआ है वो उसने एक लिमिटेड अमाउंट दिया हुआ है, तो वो बहुत मुश्किल से एक बच्चे का पूरा होता है। लेकिन हमने कोशिश की, आप लोग भी दुआ करना कि नेक्स्ट से अगर हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है तो उसमें क्या होगा, आपका फ़ायदा होगा और नर्सिंग का फ़ायदा होगा, और इंशाल्लाह आप लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने काफ़ी शायद आपका टाइम ले लिया, बोर कर दिया, क्या किया? समझ आई मेरी बातों की? चलो, तो हम आज अपने आपके साथ प्रॉमिस करते हैं कि मेरे साथ ही मुकाबला है और मैंने अपने साथ ही लड़ना है। वो वाला लड़ना नहीं है, सही है, पता चले दीवार में सर मार रहे हो जाके। हमने मेहनत करनी है, हमें टास्क मिलेंगे उसको तरीके से टाइम पे पूरा करना, और कुछ नहीं करना। नर्सिंग मुश्किल नहीं है, अगर इसको डेली बेसिस पे साथ साथ करते रहो, बेहतरीन करके इसको आराम से निकल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। तो इसको सर पे नहीं सवार करना, कोई भी चीज़ परेशान नहीं होना। अगर कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, टीचर काउंसलिंग के लिए बैठे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत बंदा जो सिंधी में बोलते हैं ना, चरिया हो जाए, परेशान हो जाए, तो हमारे पास साइकोथेरेपिस्ट हैं, आप उससे जाके काउंसलिंग भी कर सकते हैं। कोई मसले वाली बात नहीं है। मुझे भी मसला हुआ था तो मैं भी गया था किसी के पास, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। होता है, स्ट्रेस की वजह से लोग कोप नहीं कर पाते, काम नहीं कर पाते, तो आपको काउंसलिंग लेना पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, आप इन चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज़ करना, ताकि कल को हमें जो हमारा मकसद है वो भी पूरा हो कि हम एक बेहतर नर्सेज मार्केट में दे रहे हैं या सोसाइटी में दे रहे हैं, जो जाके मेंस काइंड को या ह्यूमैनिटी को या इन चीज़ों को जाके सर्व करें। ठीक है, और बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर एंड वेलकम अगेन टू मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग।